Hello everyone, this is Vibha. How are you all? I hope you all will good at your home. Students, today I am here with a new topic. The name of the topic is, as you can see on your screen, the name of topic is subject and predicate. Today we will discuss about the topic what is a subject and what is a predicate. In my previous video, I have told you about what is a word and what is a sentence. So first, I will tell you what is a subject and predicate is the part of which section. Actually, just subject and predicate is the part of sentence. In my previous video, I have discussed that a sentence is a group of words which has a complete meanings, but in this topic there are two parts. As you can see on your screen, the two parts are, one is subject and one is predicate. So the question comes in your mind that what is a subject, what the subject is, means subject hota kya hai. So students, I want to tell you one important fact here, that at the place of subject only two things can be placed, or you can say that only two parts of speech can be placed at the place of noun or at the place of subject. So what is the noun? You know very well, the naming words are called noun. And what is the pronoun? The words which are used in place of noun is called pronoun. So you know the definition of both these terms. So keep in your mind, whenever you are trying to recognize the subject, first you have to mention there that it is a noun or a pronoun. It should be a noun or a pronoun. Got it? So there are three main parts. What is a subject? When the question is asked to you that what is a subject, you will say that we speak about in a sentence. Means in a sentence, about whom और अबाउट वॉट वी आर टॉकिंग, जिसके बारे में हम बात करते हैं या जिसके बारे में हम बात बता रहे होते हैं या कोई स्टेटमेंट दे रहे होते हैं, इट इज़ अ सब्जेक्ट. गॉट इट? The second point, performer of the action, or when in any subject there is a performer, means जो भी कैरेक्टर वहाँ पर है या जो भी थिंग वहाँ पर है, पर्सन, नाउन और प्रोनाउन की जगह में क्या होगा, प्लेस, पर्सन, थिंग, लाइक दैट. ठीक है? और नेमिंग वर्ड्स इस तरीके के वर्ड होंगे वहाँ पे. तो अगर वो कोई एक्शन कर रहे हैं तो द परफॉर्मर ऑफ दैट एक्शन इज कॉल्ड subject. Got it? The point 3 I have mentioned here, who and what. We ask the question in the sentence that who is the performer of the action or who is the doer of the action. The second we will ask the question what. Who or what से हम एक question पूछते हैं to the sentence that who, what is the sentence, what is the सेंटेंस इज़ अबाउट, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. ठीक है? जिसके बारे में अबाउट मीन्स स्पीक अबाउट. यहाँ भी फर्स्ट लाइन में भी मैंने लिखा था, सब्जेक्ट अगर आपको रिकॉग्नाइज करना है तो यू हैव टू आस्क द क्वेश्चन टू द सेंटेंस दैट हु इज़ द परफॉर्मर, हु अबाउट हुम वी आर टॉकिंग अबाउट एंड अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग. किसके बारे में हम बात कर रहे हैं. जब हमें इन क्वेश्चंस का आंसर मिलता है तो वो क्या बन जाता है हमारा सब्जेक्ट. सपोज इफ़ आई गिव यू एन एग्जाम्पल दैट रिया reads a book, then I ask the question to the sentence who reads the book. The answer comes in my mind is Riya, means Riya is a subject there. Student, I will explain it through the example later, so just keep the rules in your mind. Second side I have mentioned here predicate. What is a predicate? Got it? तो predicate हमारा क्या होता है, tell something about द सब्जेक्ट. अब आपने जब सब्जेक्ट रिकॉग्नाइज कर लिया तो प्रेडिकेट क्या होता है. प्रेडिकेट इज़ अ टर्म विच डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट के बारे में वो आपको बताया कि सब्जेक्ट कुछ कर रहा है या फिर वो है या फिर उसके पास कुछ है. द सेकेंड पॉइंट सेज दैट इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट इज, हैज़ और डज. मीन्स जो प्रेडिकेट है हमारा वो हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट वहाँ पर है, कोई मतलब किसी उसके बारे में कोई चीज़ बताएगा कि वो ऐसा है, या फिर इट हैज़ और ही शी इट और एनी पर्सन प्लेस और थिंग हैज़ समथिंग और डूइंग समथिंग. मीन्स वहाँ पर वो तीन चीज़ें बताता है. प्रेडिकेट वाला जो सेक्शन होता है वो सब्जेक्ट के बारे में हमें बताता है कि या तो सब्जेक्ट के बारे में कोई क्वालिटी, जैसे सपोज
आई एम अ टीचर, तो मेरे बारे में क्या ना इन्फॉर्मेशन दी इसने, आई एम अ टीचर, कि मैं टीचर हूँ, ठीक है। इफ़ द चेयर हैज़ 4 legs, तो हैज़ मीन्स उसने क्या बताया उस प्रेडिकेट ने चेयर के बारे में कि इट हैज़ 4 legs। डू दैट आई एम टीचिंग यू, मेरे बारे में आप क्या बता रहे हैं, मैं क्या कर रही हूँ, टीचिंग, ठीक है। तो 3 फैक्ट समझ में आए, इज़, हैज़ एंड डज, कि सब्जेक्ट के पास क्या है, क्या वह रखता है और क्या वह कर रहा है, ठीक है। तो प्रेडिकेट से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। क्लास ये ध्यान रखिएगा, प्रेडिकेट इज़ अ पार्ट इन विच अ वर्ब कंसिस्ट। एक प्रेडिकेट वो सेक्शन होता है जिसमें एक वर्ब होती है और कई बार उस वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट भी होता है। सपोज मैंने कहा आपसे आई एम राइटिंग विद पेन, ठीक है, तो वहाँ जो पेन है, मैं जो अपना एक्शन कर रही हूँ वो किसकी हेल्प से कर पा रही हूँ, पेन। पेन इज़ ऑल्सो अ नाउन, ठीक है। तो वर्ब के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में चला जाता है और वर्ब के बाद वाला जो सेक्शन होता है उसे हम किस में रखते हैं, प्रेडिकेट सेक्शन में। क्यों? क्योंकि मेरे बारे में फुल इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको किस सेक्शन में मिल रही है, प्रेडिकेट सेक्शन में, कि आई एम रीडिंग और राइटिंग अ लेटर विद द पेन, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर विद द पेन, मतलब मैं जो टास्क कर रही हूँ, आई एम परफॉर्मर ऑफ द एक्शन ऑफ writing a letter, it is completed with the help of that pen, means that is an object। means जो एक्शन होता है वो करने वाला सब्जेक्ट होता है और वो एक्शन जो रिसीव कर रहा होता है, मीन्स जिसकी हेल्प से वो एक्शन हो रहा होता है, that is the object। Got it? Don't be confused, I will give you the examples further। So first we will discuss the terms। what is an object? Object is the second noun, द सेकेंड नाउन और प्रोनाउन इन द सेंटेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। जो भी सेकेंड नाउन और प्रोनाउन, जैसे मैंने आपको बोला आई एम राइटिंग अ लेटर विद द पेन, तो पेन जो है सेकेंड नाउन हुआ, फर्स्ट नाउन क्या था, मैं थी, वो नाउन या प्रोनाउन क्या थी, सब्जेक्ट की जगह पे मैं थी। और दूसरा नाउन या प्रोनाउन यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या आया है, जो सेकेंडली आया है वो है पेन, तो इट इज़ एन ऑब्जेक्ट। इट इज़ अ रिसीवर ऑफ द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो कर रहा होता है उस एक्शन को रिसीव कौन करता है, हमारा ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने बोला आई एम राइटिंग अ लेटर विद द पेन, तो जो राइटिंग वाला मेरा जो एक्शन है वो किसने जाके रिसीव किया, तब कंप्लीट हुआ पेन ने। अगर मेरे पास पेन ना हो तो क्या मैं लिख सकती हूँ, नो। तो जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट के एक्शन को रिसीव कर रहा होता है, मतलब उसको कंप्लीट मीनिंग देने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। द थर्ड पॉइंट इज ओनली नाउन और प्रोनाउन कैन बी एन ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे सब्जेक्ट में सिर्फ नाउन या प्रोनाउन आ सकता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे भी सिर्फ 2 चीज़ें आती हैं, आइदर इट इज़ नाउन और अ प्रोनाउन। The last one is how to find out the answer, object। We have to ask the question what and whom। Means suppose the same example, I am writing a out the object, you will ask the question to the verb। what question you will ask, what and whom। so suppose I have taken an example that I said that you called me, mean whom you called, हमने वर्ब से क्वेश्चन पूछा, called means suppose एग्जाम्पल यहाँ देखिए क्लास, मैं ऐसे लिख रही हूँ आपके सामने, you called me। तो हमने इस वर्ब से क्वेश्चन पूछा whom you called, किससे आप बुला रहे हो, तो आंसर मिला हमें me, यानी कि मुझे बुलाया, ठीक है। तो यहाँ पर me जो क्या है वो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। आफ्टर दैट द सेकेंड क्वेश्चन यू विल आस्क इज व्हाट, ठीक। तो व्हाट में आप क्या पूछोगे, सपोज जैसे मैंने आपसे कहा आई गेव आ बुक, ठीक। तो हमने क्वेश्चन क्या पूछा, व्हाट यू हैव गिवन, क्या आपने क्या दिया, तो आपका आंसर मिल गया बुक। तो बुक यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। So whenever we have to find out an object, we will ask the 2 questions to the verb what and whom, so we will get the object। so student, I hope you get understand what is the subject, what is the predicate and what is the object। note down these points in your notebook and then
go through the examples. Now I will discuss these terms with the help of examples. Examples in front of you. Sita sings well. ठीक है, तो व्हाट इज़ द नाउन इन दिस सेंटेंस? मैंने बताया था आपको सब्जेक्ट हमें चूज़ करना हो तो वी विल गेट द फर्स्टली वी विल गेट नाउन और प्रोनाउन. तो व्हाट इज़ द नाउन हेयर? तो सीता इज़ अ नाउन हेयर, तो मीन्स सीता इज़ अ सब्जेक्ट. सिंग्स वेल आपका प्रेडिकेट पार्ट हो गया क्योंकि उसमें बताया जा रहा है कि वो क्या कर रही है. व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट? अबाउट सब्जेक्ट में क्या है, हम किसके बारे में बात करें तो अबाउट व्हाट वी आई एम स्पीकिंग अबाउट सीता. एंड व्हाट इज़ अबाउट सब्जेक्ट? सब्जेक्ट के बारे में जब हम समथिंग कहते हैं तो इट इज़ कॉल्ड प्रेडिकेट. इन द सेकेंड सेंटेंस द सन शाइन्स ब्राइटली. तो व्हाट इज़ द नाउन प्रोनाउन इन दिस सेंटेंस? ठीक है, तो सन. हमने क्वेश्चन पूछा अब किसके बारे में बात हो रही है? सन के बारे में, तो मीन्स सन यहाँ पर हमारा क्या है? सब्जेक्ट. द एलिफेंट हैज़, यहाँ पर मैंने बताया था सब्जेक्ट की रिकग्नाइजेशन हमारी हैज़ से भी होती है. उसमें वो इज़ हैज़ जो हमारा प्रेडिकेट पार्ट होता है वो हमें बताता है इज़ हैज़ और डज. तो हैज़ वाला सेक्शन यहाँ पर वर्ब आ गई, तो हमारा जो एलिफेंट है वो हमारा नाउन में आ गया, ये हमारा सब्जेक्ट है, और रेस्ट ऑफ द पार्ट इज़ प्रेडिकेट. आई यहाँ पर क्या है? नाउन या प्रोनाउन है, तो प्रोनाउन है यहाँ पर, तो प्रोनाउन हमारा क्या होता है? सब्जेक्ट. एंड रेस्ट ऑफ द वर्ब पार्ट इज़ प्रेडिकेट. सो आई एम अ टीचर, वो बता रहा है इज़ क्या हूँ मैं हूँ एक टीचर. तो मेरे बारे में उसने क्या इन्फॉर्मेशन दी? आई एम अ टीचर, तो मीन्स इट इज़ अ प्रेडिकेट पार्ट. द नेक्स्ट एग्जाम्पल सेज रीता प्लेज अ पियानो. द एक्शन डूइंग, शी इज़ डूइंग एन एक्शन. क्या एक्शन कर रही है वो? प्लेज अ पियानो. क्लास हमने बताया था प्रेडिकेट सेक्शन में आपकी एक वर्ब भी होगी और एक ऑब्जेक्ट भी आ सकता है. अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है रीता की वो किसके थ्रू कंप्लीट हो रही है? आप देख सकते हो, देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है? रीता. ठीक, ये सब्जेक्ट हुई, ये आपका डूअर हो गया जो एक्शन कर रहा है. कौन कर रहा है यहाँ पे? रीता. प्लेज अ पियानो. पियानो मीन्स यहाँ पर दूसरा हमारा नाउन प्रोनाउन आ गया, नाउन आया यहाँ पे पियानो. तो जो एक्शन है वो इसके ऊपर फॉल हो रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बन गया इसका? ऑब्जेक्ट. सो रिमेंबर इट दैट इन प्रेडिकेट पार्ट देयर विल बी एन अ वर्ब. एक वर्ब भी हो सकती है, जैसे यहाँ पर थी वर्ब. ठीक है, वहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं था. सीता सिंग्स वेल, बस उसी के बारे में हमने बता दिया कि सीता अच्छा गाती है. हमने किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका काम पूरा नहीं करवाया. लेकिन यहाँ जो परफॉर्मेंस है रीता की वो प्लेज अ पियानो. तो ये जो प्लेस करती है, क्या प्ले करती है, वो तब तक कंप्लीट नहीं हो रहा है जब तक हमें ये ऑब्जेक्ट नहीं मिला. तो यहाँ तो प्रेडिकेट पार्ट में आपका वर्ब भी होता है और वर्ब के साथ में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है. द नेक्स्ट सेंटेंस इज द बेबी इज़ प्लेइंग. अब यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है सिर्फ वो अपने आप में कंप्लीट है कि वो बेबी जो है वो खेल रहा है. ठीक, क्या खेल रहा है उन्होंने नहीं बताया, किससे खेल रहा है नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्टली उसका एक्शन बताया. तो मीन्स इज़ पार्ट जो है वो इज़ के बाद यानी कि वर्ब के बाद वाला जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट. द लास्ट सेंटेंस इज माई मदर. अब यहाँ पर माई मदर क्या है? आपका सब्जेक्ट है क्योंकि देयर इज़ अ पर्सन प्लेस और थिंग इज कम इन द कैटेगरी ऑफ नाउन. सो माई मदर इज़ अ सब्जेक्ट हेयर. इज़ वॉशिंग क्लोथ, वहाँ पे यहाँ पे उनका एक्शन आ गया. क्या वो कर रही हैं? प्रेडिकेट पार्ट में होता है कि वो उसका एक्शन बता रहे होते हैं, उसके बारे में कुछ भी बता रहे होते हैं. वॉट इज़, हैज़ और डूइंग. तो डूइंग यहाँ पर क्या है? जो क्या कर रही हैं वो? वॉशिंग द क्लोथ. तो दिस सेक्शन इज कम्स इन द कैटेगरी ऑफ प्रेडिकेट. So student, you have to do the more practice about this topic and write down all the things I have mentioned in the first pic, which was down all the important parts of these top 3 topics. First you have to remember these all the or learn all the rules. Then you have to go through the examples. After that you will do the exercise at your own. If you have any problem you can ask me. I hope you will get the topic very well. Thank you. Have a nice day.